It was my ambition that at that time I should have my own plane, Okay. own helicopter, Wow. and I should learn to fly also. So I started one small factory of aluminium sheets. I didn't know anything about business. First year I lost 10 lakh rupees. Everything was ruined off. जैसे कहते हैं कि Rome was not built in one day, Of course. but according to me Rome was built day by day. टीम बनाने के लिए पहले आपके पास लीडरशिप क्वालिटी चाहिए. जो भी क्रेडिट मिलता है, कुछ भी सक्सेस मिलता है, तो क्रेडिट उनको दे. यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम. और कुछ फेल्यूर आता है तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई शुड टेक. तो आइडिया तो सबको आती है, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं. सही बात है. तो इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए, आइडिया को एक्सचेंज कीजिए. इफ़ यू एक्सचेंज 500 रुपीज़ नोट, it doesn't make any difference. Again, you will have 500 rupees, I will have 500 rupees. But if I will exchange two ideas with you and you will exchange two ideas with me, I will have 4 ideas, you will have 4 ideas. Welcome to a very special episode of Inspired. Today marks the 12th episode, one full year of incredible conversations that have inspired school owners, educators, parents, and change makers in the world of learning. I'm your host, Ankur Gupta, and I couldn't be more thrilled to celebrate this milestone with an extraordinary guest, Mr. Sanjay Godawat, a visionary entrepreneur and an educationist who is known for revolutionizing multiple industries from aviation to FMCG, but his real impact lies in education. What began as a dream in 2009 has transformed into a learning ecosystem with over 20,000 students across schools, colleges, and a university. Recognized among Asia's fastest growing private institutes, his journey is not just about building businesses, it's about shaping future. Today, we'll uncover what inspired him to enter education, his philosophy on leadership, and innovation in learning, along with his vision for the future. If you're an entrepreneur, an educator, or someone passionate about transforming education, this episode is for you. Let's dive in and get inspired. Sanjay ji, it's great to have you on the show. Thank you so much for hosting us over here, and it's a privilege to have you on Inspired. I've been, I have the privilege to be around your ecosystem for quite some time, and it's an honor really to be sitting down in this conversation with you today. Yes. At the outset, I would like to thank you also for inviting me for this podcast. Thank you so much. Thank you sir. very much. Thank you. Sir, I'll just dive right in. My objective today is that, your journey as an entrepreneur, as an educationist, has been very inspiring. And what I really want to sort of deep dive in today is कि जो आपकी journey रही है, what is the Sanjay Godawat playbook for success? Yeah. Right? That is what I want to get into. I want to know how to scale large businesses, how to build a team and trust the team, or how to have that fulfillment through education. Yes. Right? जो आज आपने एक business empire से education में step in किया. So that is my objective with the conversation that we are having today. But I want to start from the beginning. Yes. Right? Every successful person has a beginning, which is where it all starts. Yes. So I want us, you for the audience, to touch base on that starting of your journey, and then sort of walk us through early years of Sanjay Godawat. Yes. So I would like to start from my childhood. So at the age of 6, I was very ambitious and naughty and backbencher. Also. Okay. So it was my ambition that at that time that I should have my own plane, Okay. own helicopter, Wow. and I should learn to fly also. So these were my ambitions. And ऐसे ही फिर नोटी इतना था कि कुछ भी अगर पापा नहीं लेके देते थे, खिलौने भी जो थे वो भी सब ऐसे ही थे, हेलीकॉप्टर और प्लेन. तो लेके नहीं देते थे तो उनकी कार की कांच भी फोड़ देता था. तो इतना जिद्दी था. Absolutely. तो जिद्दी था और मिस्चीवस और एम्बिशियस इसलिए था, और बैक बेंचर था. हर क्लास में बैक बेंच पे ही बैठता था, क्योंकि इट्स माय बिलीफ दैट front benchers know how to solve the problem and back benchers know how to face the problem. Oh, lovely. Well said. Well said. तो उस टाइम से ऐसे हर चैलेंजेस को या फेस करना एक मेरी आदत थी.
तो ऐसे करते करते फिर इंजीनियर बना, मैकेनिकल इंजीनियर बना मैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद पापा को कहा कि आई वांट टू डू समथिंग न्यू। तो पापा ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो सब पहले से जो बिजनेस करते हैं हाँ. ट्रेडिंग का, वही करना चाहिए। The family business was of trading. यस, ट्रेडिंग Okay. ओनली, Trading of what, sir? टेक्सटाइल एंड अच्छा. अदर थिंग्स ऑल्सो। Okay, that was the ancestral Beginning, business. yeah, Okay, yeah. okay, wonderful. So I told him that I don't want to do that. So I started with some, I took 10 lakh rupees, 12 lakh rupees from Papa in 87, 1987. That's when it all started. Yes, yes. So I started with aluminium factory, small factory. How old were you, sir, at that time? At that time I was 20 years old, Wonderful. Wow. 21. Uh-huh. So I started one small factory of aluminium sheets, Acha. manufactured from aluminium scrap. Okay. So I didn't know anything about business because I was engineering student. So first year I lost 10 lakh rupees out of 12 lakh पूरा rupees. पूंजी गया. हाँ, because of no idea of business and no idea of balance sheet, how to see the balance sheet. So everything was ruined off, and my capital was at only 2 lakh rupees I remained with. So I lost 10 lakh rupees, and balance sheet was, nothing was right on the left and nothing was left on the right. Left and the right. So that was the position of balance sheet. So again I went to पापा और कहा कि मुझे और पैसे चाहिए. तो पापा को सब उनके फ्रेंड ने कहा कि इसको 1 रुपया भी मत देना, तूने जो हार्ड वर्क से मिलाया है ये सब गंवाने वाला है. तो ये मेरा इम्प्रेशन था सबके पास. तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे चाहिए वो. तो उन्होंने नहीं दिया उस टाइम. उन्होंने कहा कि अब मेरे पास नहीं है, आना करना है तो हमारा बिजनेस करो, नहीं तो तुमको जो करना है वो करो. तो फिर मेरे पास 2 लाख रुपये बचे थे और एक मेरा सेल्समैन था. तो हम दोनों ने मिलके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, घर में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स छोटे छोटे बनाते गए हम. और वो करके खुद टेम्पो ड्राइव करके करीब करीब 3-4 लाख किलोमीटर टेम्पो खुद ड्राइव किया. Going to small shops Yes, and small all. shops Wow. for marketing. हाँ. So at that time I used to drive the tempo also for 3 to 4 lakh kilometer, Wow. and I slept in the tempo for many times. And production and ये सब sourcing हाँ, सब खुद ही. हाँ, सब खुद करना, प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना. तो ये करते करते फिर लोगों को एक ट्रस्ट आ गया कि he will do something great. And quality products. हाँ, and quality product, service is good. हाँ. And so they started trusting me at that time. So उन्होंने कहा कि फिर आप ऑयल निकालो, राइस निकालो स्टार नाम से, तो आप क्यों नहीं निकालते? तो मैंने कहा कि आई डोंट हैव दैट मच मनी, सो आई कांट स्टार्ट. तो उन्होंने कहा कि वी विल प्रोवाइड यू द मनी. तो एट दैट टाइम दे सपोर्टेड मी very well, and then we started oil, star oil, then star rice, then namkeens, then salt, and beverages. Wow. Kulberg and these types So of different industries different started industries to we have come started into fold. at that time. And then chemical factory, Okay. and then textiles, and then mining, marble mining, and So- then I want to come back to this in a second, sir. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि आप जब क्लास में बैठते थे उसी टाइम यू हैड मैनिफेस्टेड कि मुझे अपना प्लेन होना चाहिए. दिस इज सम दैट एम्बिशन वाज क्रिएटेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज. वो कहाँ से आया था सर, वो एनर्जी और वो माइंडसेट उस टाइम पे? हमारे ग्रैंडफादर से है. हमारे इसमें कि कुछ तो बड़ा करना है. तो वो दादाजी से डायरेक्ट मेरे में आया. पापा वाज सेटिस्फाइड, ही इज वेरी सेटिस्फाइड पर्सन. लेकिन मेरे में ज़्यादा एम्बिशन थी और डिसिप्लिन भी पहले से था. ऐसे नोटी भी था लेकिन डिसिप्लिन था कि जो करना है वो करना है और बराबर करना है. तो उस टाइम से ये एम्बिशन थी. तो अगर एम्बिशन आपकी बड़ी रहती है, गोल्स अगर बड़े हैं तो ही आप कुछ तो कर सकते हैं. और जिद भी होनी चाहिए उसके लिए. तो उसमें से फिर ऐसे डाइवर्शन करते करते केमिकल फैक्ट्री के बाद फिर टेक्सटाइल्स के बाद फिर 2010 में ये एजुकेशन कैंपस शुरू किया. उस टाइम कि ये करने का मेन रीज़न ये था कि वी हैव डेवलप्ड आवर एम्पायर हियर इन दिस एरिया वेयर वी बॉर्न.
So, but my children, they studied in metros, like Bangalore or Bombay. So that was pinching me. Because the That- type of facility you wanted Yes. for them was not available in this yes, area. Yes. Yeah. So to stop the brain drain, Huh. I have started this institute Wonderful. at that time. Did your children get to study at all? कि वो तो already हो गए no, थे. already हो चुके थे. But you want for the community Yes, over community. here. अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा. to give back to the society. That was the main motto. But Yeah. sir, what EDGI, Sanjay Godawat University or the international schools as we see today, when you started it, I mean, obviously एक होता है कि यार अपने एरिया में भी अच्छी facilities होना चाहिए is one thing, हाँ. and the way it looks today, how amazing it is. At what point was there a defining moment where you thought कि नहीं यार इसको अलग ही level पे अपने को ले जाना है? हाँ, वो पहले से एक एम्बिशन थी कि जो करेंगे वो टॉप क्लास करना है किसी भी फील्ड में. Okay. जो ऑयल भी है हमारा या कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, नमक भी लेंगे आप तो भी वो टॉप क्वालिटी का रहेगा. तो ये एक अभी मार्केट में एक रेपुटेशन ऐसे हो गया है कि संजय गोडावत ग्रुप प्रोडक्ट इज़ मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट. तो ऐसे एक रेपुटेशन हो गया है. तो वो हिसाब से इसको भी जब शुरू किया था, बट आई डिडंट गेट एनी सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट In the in schools? any business. अच्छा, in any business. Okay, हाँ. okay. So after second or third attempt, हाँ. I got success in any field. Okay. So पहले ही जब शुरू किया 60 बच्चे थे इसमें, अच्छा स्टूडेंट 60 थे इसमें इंजीनियरिंग में. अच्छा. तो पहले हमने इंजीनियरिंग चालू किया था, इंजीनियरिंग स्कूल्स बाद में आए. हाँ, स्कूल से 1 साल बाद हुआ था. अच्छा अच्छा. तो इंजीनियरिंग शुरू करने के बाद 60 स्टूडेंट्स वर देयर एंड ऑल स्टूडेंट्स केम आफ्टर 6 months Okay. and they started asking for refund of fees Okay. at that time. So I asked them what happened. हाँ. So they told me that nothing is there, quality education is not there. We saw your name and we came. So मैंने कहा कि I am entrepreneur, I am not educationist. तो मैं जो भी करूँगा my intention is very clear that you should get good education. So my intention is clear and I will do something for that and I will change the management Okay. and then we will check. Okay. So give me just 6 months, हाँ, हाँ. another 6 months. अच्छा. तो ये रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 6 महीना और रुकते हैं. वाह. तो उसके बाद हमने मैनेजमेंट चेंज की, फिर विनायक भोसले हाँ. और मोहंती मैम सबको यहाँ पे Dream appoint team कर- बनाया टीम basically. बना के. हाँ, हाँ. तो फिर सब वो सेटिस्फाइड हो गए सब बच्चे. वेरी गुड. तो उसके बाद फिर एक एक जैसे ये होता गया, कॉन्फिडेंस आता गया, वैसे हम इसको बढ़ाते गए. Yes. तो इसके बाद फिर स्कूल शुरू हुआ. हाँ. स्कूल के बाद फिर पूना में स्कूल है, हाँ. बेलगांव में स्कूल है. Yes. सो आज मुझे कहने में खुशी महसूस होती है कि आज जो 60 बच्चों से शुरू किया था 2010 में, हाँ. आज इस टोटल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी स्कूल में हाँ. देर आर 21,000 स्टूडेंट्स. वंडरफुल. तो ये जो जर्नी है, इसके बाद फिर ये हुआ एयरलाइन, हाँ जी, हाँ. स्टार एयर. अच्छा, that is हाँ. even after education. Yes, after education. So the first So, ambition yeah, ultimately I started- is coming into हाँ, effect. नहीं, एम्बिशन एयरलाइन की नहीं थी. अच्छा. एम्बिशन थी प्लेन Plane चाहिए, own हेलीकॉप्टर करने की. चाहिए. हाँ. तो आई बॉट माय फर्स्ट हेलीकॉप्टर इन 2004. And you fly as well, right? Yeah, so 2004 I bought first helicopter. Uh-huh. Then at the age of 53 I learned to fly helicopter Oh, and wow. plane also. अच्छा. So and after that in 2019 we have started airline, and that was not my ambition. We have started that because of necessity, because connectivity is very bad Yeah. to Kolhapur. So that's why we have started the airline. So let me step back, sir. Just And say- one thing I want to tell. Yes, please. That we have started this group with 2 lakh rupees and 2 persons. Uh-huh. And today I am happy to say that this group is second group after Tata Uh-huh. that is engaged in manufacturing of salt Uh-huh. to run a commercial airline, Salt to airline. salt to airline. And now 11,000 direct employees are there Oh, wow. and 21,000 students. Wow. So this is the story of Sanjay Godawat Group. That's amazing, sir. And there are so many anecdotes जिनसे हमको सीखने मिलेगा आज आपकी स्टोरी से एंड जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं. आई थिंक आई वांट टू गो बैक टू दैट मोमेंट. जैसे आपने बताया कि जो बिजनेसेस आपने करे हैं उनमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं थी. इवन इन एजुकेशन यू वर नॉट एन एजुकेटर बट यू वर एन एंटरप्रेन्योर, Yeah. राइट? तो ऑब्वियसली हर इनिशिएटिव में आपने कहा कि
you had certain failures also, Yeah. right? But then you picked up on those. आपने उस पे वो फेलियर से सीखा, Yeah. challenges आए, challenges को solve किया, हाँ. तो over time आपके challenges की quality भी change हुई होगी. हाँ. तो थोड़ा हमको अपने challenges के बारे में बताइए सर, so Yes. that we can learn from those challenges. How, अगर कुछ एग्जाम्पल्स आप दें तो उससे हमको समझ में आएगा कि ऐसे challenges को how did you deal with those challenges? Yeah, you will be surprised to know that I have failed many more times than I have succeeded Of in my course. life. हाँ. तो बहुत बार फेल हुआ लेकिन कभी भी चैलेंजेस को डर के पीछे नहीं मुड़ के नहीं देखा कभी भी. आई मेड देम एज अ स्टेपिंग स्टोन्स एंड वी पास दैट मोमेंट. सो ऐसे करते करते फिर हम जैसे भी चैलेंजेस है, क्योंकि मैं आज मानता हूँ कि चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू फेस देम इज आर्ट ऑफ लाइफ. Absolutely. हाँ. That makes sense. And I think increasingly आज अभी हम टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी बात करेंगे. टेक्नोलॉजी से there are so many solutions coming up, but that art of life is the factor जो emotional intelligence बोल लीजिए. Yes. You know, those are the things that we need to continue Yes. work on. But जो मैं challenges की अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि शुरू में students had come back कि भाई we don't like it, we wanna maybe possibly get a refund. तो कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस आप शेयर कर सकते हैं जब आपने एजुकेशन सेक्टर में एंटर किया. व्हाट वाज सम ऑफ द चैलेंजेस यू इसका फेस्ड? कोई आइडिया नहीं था हमें कि हाँ. कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है. हम्म. मैं इंजीनियर हूँ हाँ. लेकिन हम पढ़ के आते थे और बाकी कुछ डीप में नहीं गया था कभी भी. तो इसके लिए हमने एक टाइप किया था पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज से. तो दैट वाज वर्स्ट डिसीजन. हाँ, बिकॉज दैट मैनेजमेंट वाज वेरी बैड. सो उस टाइम से हमने सीखा कि जो भी अपना इंटेंशन भी क्लियर रहेगा, क्योंकि मास्टर लोग चाहिए इसमें जो भी चलाना है. तो उसमें से फिर हमने ये जो टीम डेवलप की उसमें, तो उससे ये अच्छा होते गया क्योंकि हमारा इंटेंशन क्लियर था कि हमको सिर्फ पैसा नहीं मिलाना है यहाँ से, हमको एजुकेशन अच्छा देना है. तो इंटेंशन आपका क्लियर रहेगा तो आपके थॉट्स अच्छे होते हैं और अच्छा ही होता है आपका. Yes. And I think coming from that intent of giving the right service first and Yes. everything else is a matter of fact as a Yes. side byproduct of Yes, it. yes. Basically is what you're saying. Sir, जो education is happening at the overall, जैसे आपने बोला 21,000 students are studying in this ecosystem. What I understand is that there is generally a holistic education का हम बात करते हैं to prepare students for that art of life aspect. हम what is like the Sanjay Godawat way of learning, अगर मैं पूछूं आपसे, so how would you tell our audience your way of learning? हाँ, तो मेरा तो ये है मानना कभी भी कि जिस स्टूडेंट को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसने वो करना चाहिए. कभी भी उसको डिप्राइव नहीं करना चाहिए उससे कि तू ये इंजीनियर बनना है तो तू डॉक्टर बन, या ऐसे नहीं करना चाहिए. और होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि कुछ भी स्पोर्ट्स में हो या कोई भी हो तो उसमें भी डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए. मैंने हमेशा एक मोटो रखा है और बच्चों को भी हमेशा बोलता हूँ कि हमको एक तो ओलंपिक मेडल चाहिए, गोल्ड मेडल. हाँ. अपने स्कूल के लिए Yes. या कॉलेज के लिए. तो ये अगर हम टारगेट रखते हैं तो हम ऑटोमेटिक उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट में जाते हैं. डांस हो या स्पोर्ट्स हो, कोई भी हो, कि सिर्फ वो किताबी कीड़े बन के नहीं रहना चाहिए. ये मेरा एक सोच है. बिल्कुल. और वो सोच पे हम काम करते हैं. और आज जैसे आपने देखा होगा कि स्मृति मानधना है वाइस कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम की. तो शी इज स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज. Oh wow, हाँ. I did not know this. या एंड ऐश्वर्या जादव शी प्लेड अंडर 18 विंबलडन. हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बनते हैं. तो दैट गिव्स द सेटिस्फैक्शन. बिल्कुल. Yeah. नहीं, I think and as you walk around this campus, Yeah. यहाँ पे you see that कि there has not been any stone left unturned. Yes. All the facilities that you could possibly get in anywhere, not just India, Yeah. even globally, Yes. You have really put your heart out Yes. into Daily I creating that spend environment. at least 5 to 6 hours Yeah. in the campus. Oh wow. Daily. So with your level of engagement across different sectors, I run this- 12 industries. haha. But education gives me satisfaction and gratification. Wonderful. And you are putting your time in that initiative as well. That Yes. speaks volumes. And that gives respect also. Absolutely. So this is totally different sector हाँ जी. according to me. Sir, so
we were talking about the why for education, and it seems like obviously you were doing really well in your businesses as an entrepreneur, but then you still chose education as a place to sort of find your calling or the fulfillment. How has that journey been? मतलब वो आपने जब स्टार्ट किया तो शुरू में challenges थे, but आपको वो reinforce कैसे करता गया कि you want to continue this part and really reinvest and keep expanding? जैसे you said you've got campuses outside of Kolhapur also now, Yeah. right? तो वो zeal कैसे आया सर? एक तो मैं इंजीनियर हूँ और डेवलपमेंट हमेशा दिमाग में रहती है। हाँ. तो हमेशा जो सोचते हैं कि अच्छे हमारी एरिया अगर डेवलप होनी है या कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री डेवलप होना है तो यू शुड प्रोवाइड गुड एजुकेशन। सो दैट इज़ द Grassroot level हाँ, growth दैट इज़ द उसी से बेसिक। होगी। तो ये एक इंटेंशन से शुरू किया था और वो एजुकेशन अच्छे देते गए हम। तो जैसे फिर नेक्स्ट ईयर हमने स्कूल शुरू किया। हाँ. तो स्कूल शुरू होने के बाद वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुए। अच्छा. तो प्रिंसिपल्स उधर के भी गड़बड़ थे थोड़ी। हाँ. तो उसमें भी चेंज करके हमने फिर मोहंती मैम को इनवाइट Okay. किया। तो उसके बाद जो वहाँ पे वेटिंग था हाँ. मोहंती मैम आने के बाद हाँ. तो admissions. फॉर एडमिशंस। Yeah. तो ये होने के बाद कॉन्फिडेंस आने के बाद हाँ. फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते गए फिर। हाँ जी. सो एंड नाउ टुडे वी हैव कंस्ट्रक्टेड मोर देन 20 लाख स्क्वायर फीट 22 लाख wow. स्क्वायर फीट Okay. इन दिस कैंपस। Got it. तो ये ग्रेजुअली हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। हाँ. So हाँ. for the जैसे कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे, of course. बट अकॉर्डिंग टू मी रोम वॉज बिल्ड डे बाय डे। हाँ. तो ऐसे डे And बाय we डे have to हुआ है। inbuild that into our foundations, even for our listeners, हाँ. जो aspiring educators होंगे, जिनको Yes. who are aspiring to get into education, or even business founders, Yes. right? अपने vision को day by day build करना is Yes. what is required and the need of the hour. एक दिन and में that जो requires शॉर्टकट में patience. होता है हाँ जी. इट वोंट लास्ट लॉन्गर नो। And sir, when you said कि school की journey चालू हुई, and if we look at it today, even in bigger cities, it's not common to have कि CBSE भी है, Cambridge भी है, Yes. IB भी है, IB, American and भी है। American भी है। तो अब आप you're in Kolhapur, a tier 3 city, and you've created an infrastructure and you've powering it with curriculums which are globally recognized. How did that come to be? Because it's not easy to run these curriculums individually, and you're running it all in one place. Yes. So what was the mindset to do it all? Yeah, to attract all global students हाँ. and to develop this area. That was the most main important motto behind that. आपको चेंज दिखता है सर? जैसे आज इतने साल से ये करिकुलम्स यहाँ पे चल रहे हैं. हाँ, दिख रहा है ना। What kind of change do you see in the area? सब मेट्रो से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा. हाँ, so that is the main that was the main motto, no? That's a badge of honor कि हाँ, बाहर तो से आज लोग अब यहाँ आना चाह रहे हैं. रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हाँ. कि बेंगलोर से भी बच्चे हैं, दिल्ली से है, जयपुर से है, बॉम्बे, पुणे, Oh, wow. all metros. And what do they find? I mean, according to you, what do you think they are finding value when they come here? तो जो हम यहाँ पे संस्कार देते हैं बच्चों को कि चेंज तो अडेप्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी चेंज तो आपको होना ही पड़ेगा, लेकिन चेंज के साथ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। हाँ. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम नेचुरल स्टुपिडिटी करते हैं बहुत से कि चेंज के इसमें हम वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं। तो दैट इज़ रॉन्ग। मेरे हिसाब से चेंज तो अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, लेकिन चेंज किस में होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, बाकी सब में होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दोज हु चेंज आफ्टर चेंज कैन नॉट सर्वाइव, बट दोज हु चेंज विद चेंज कैन सर्वाइव सम हाउ। That's a more sustainable life. हाँ, बट दोज हु कॉज द चेंज हाँ. कैन रूल द वर्ल्ड, Oh, ऐसा कहते interesting. हैं। तो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं नोकिया है, एरिक्सन है, हाँ. कोडैक है, हाँ. इनकी हालत हम देखते हैं कि वो दे वर पायोनियर्स इन देयर फील्ड, बट दे फेल्ड बिकॉज ऑफ दे डिडंट चेंज। Complacency. हाँ, तो चेंज नहीं हुआ तो वो फेल हो गए। Yes. लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों ने चेंज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन जो हमारे बेसिक्स है, इंडियन कल्चर है कि पेरेंट्स के पाँव छूना चाहिए और जो हम्बल रहना चाहिए, ये जो है ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने दो या कुछ भी आने दो, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे जाने दो, अगर आपको डिग्री लेने के बाद इफ़ यू बिकम एरोगेंट देन दैट डिग्री इज़ पॉइजन अकॉर्डिंग टू मी, एंड इफ़ यू बिकम हम्बल देन दैट डिग्री इज़ नेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं हमेशा सब बच्चों को बोलता हूँ
कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको इस ऐसे कैंपस में जो मूवी में भी देखने को नहीं मिलता है, ऐसे कैंपस में भेजा है। हम तो स्कूल में पढ़े थे जयसिंहपुर में, छोटे से स्कूल में, हाँ जी, जहाँ पे 8-10 क्लासरूम थे, ग्राउंड भी नहीं था खेलने को अच्छा, सही बात है। तो पत्थर में ही खेलते थे हम। हाँ, तो ऐसे कैंपस जो मूवी में देखने नहीं मिलते, वहाँ पे हार्ड अर्न मनी पेरेंट्स करके बिल्कुल। वो इनको भेजते हैं। हाँ, तो एक तो उनके ऊपर जोक मत करो कुछ भी, पेरेंट्स के ऊपर सही बात। उनको रिस्पेक्ट दो, गुरु को रिस्पेक्ट दो। हाँ, तो ये हम यहाँ पे सिखाते हैं, तो वो पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि मार्क्स कम आने दो, ज़्यादा आने दो, हाँ। दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन बच्चे हमारे आके शाम को सुबह पाँव पड़ते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है SGIS में भेजने के बाद। That's amazing, sir. And actually, that's a great inspiration for a lot of educators listening. Yes. Ki our roots Yes. of being a If being your a roots nation. are strong, Yes. then you will get good fruits. Yes. Absolutely. And I think that's a great learning to be had. कि जो हमारे संस्कार, जो आपने वर्ड यूज किया, I Yes. think that's very powerful. संस्कार कभी आपको झुकने नहीं देते हैं, हाँ. और अहंकार कभी उठने नहीं देता है। तो Lot ये of pearls हमेशा of wisdom coming हाँ, from तो you. ये बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं हाँ, हाँ, कि एरोगेंट मत बनो। हाँ जी, तो जो ये अहंकार था वो रावण का भी नहीं टिका था कभी। हाँ, सही बात तो है। रावण की हालत क्या हुई थी? बिल्कुल अहंकार की वजह से। So that groundedness will help us really अपनी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन रहेगी, Yes. और हम टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के साथ प्रगति भी करते यस, रहेंगे। दोनों भी साथ में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, I तो think ये that- मेरा इंटेंशन है इसके पीछे, हाँ जी, कि बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में संस्कार भी मिलने चाहिए। और सर अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी तो ऑल द नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस दैट कम अराउंड इवन व्हेन दे लीव द फोर वॉल्स ऑफ द स्कूल, Yes. दे विल बी बेटर इन देयर हेड टू सॉर्ट ऑफ गेट थ्रू लाइफ, Yes. क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। हाँ। आज किसी से इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, Yeah. क्योंकि हमारी वैल्यू सिस्टम्स आर स्ट्रांग। Yes. So I think more schools need to start looking into that value part Yeah, of and it. there are more girls in our hostels from metros, अच्छा. because they feel it is a secured, Safe environment. Safe environment. And then the environment is not just to keep them protected, it is also to nurture them for the life outside of this environment. Yes. So, I was curious that you've obviously brought all these international curriculums to Kolhapur, Yeah. and to your campuses outside of Kolhapur as well, Belgaum, Pune, Yeah. etc. There is an increasing trend that students are going overseas as well. Yeah. Right? So, how does an educator prepare their students to go overseas? Yeah. क्या कर सकते हैं स्कूल ओनर्स अपने स्टूडेंट्स को बाहर के लिए रेडी करने के लिए? Yes. We have, our basic motto was that to start American curriculum, IB and IGCSE. Okay. It was that only, Okay. to send students Okay, abroad. to help them prepare To for help that them journey. prepare, yeah. Got it. Makes sense. And after that we have started IIT and coaching academy. Sanjay Godawat coaching IIT and medical academy to give them coaching for Okay. the IIT and entrance exams. Last month we have started Sanjay Godawat Global Education Services. Okay. So for that is the best platform for the students to go abroad, Okay. in which we give them 5-star services. Okay. That means from visa, currency, hostel, admission process, Wow. everything we provide in that. And this is for 12th class students, or Yeah. this is for even 12th college students? 12th also and graduates also. Oh, wonderful. Yeah. So basically what I'm hearing is you start from pre-KG, Yes. and then all the way through school, Yes. the entire ecosystem is there And that you've coaching, created. and then this global education. Okay, got So it. this is the Kind of makes sense. Yeah. Sir, we talked about mindset, right? कि जैसे आज भी even though we are trying to be creative in different offerings, but क्या होता है आज भी पेरेंट्स का माइंडसेट भी होता है और कई बार स्कूल्स का भी माइंडसेट हो जाता है कि मार्क्स इम्पोर्टेंट है, हाँ. राइट? तो हाउ डू वी हेल्प प्रायोरिटाइज कि भाई मार्क्स से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मार्क्स तो मुझे भी बहुत थे. मैथ्स में मुझे 10th में थे 149 आउट ऑफ 150. अच्छा, उस टाइम 150 का होता था? 149 मार्क्स थे. ओह वाओ. हाँ, तो लेकिन जो उसमें था
वो आज प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी यूज़ नहीं होता है। तो जो मेरे हिसाब से है, स्किल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। स्किल एंड विल, स्किल पावर एंड विल पावर, तो ये इम्पोर्टेंट है। मार्क्स कम रहने दो या ज़्यादा रहने दो, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ आएगा वो एक तो है कि डिसीजन आप कैसे लेते हो। हाँ जी। राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन, कुछ भी रहने दो, रॉन्ग डिसीजन लेके उसे राइट कैसे बनाना है, दैट इज़ द स्किल। दैट्स अमेजिंग। हाँ, तो ये स्किल में अगर हम जाते हैं आगे तो मार्क्स डजंट मेक एनी, मार्क का इतना ज़्यादा मायना नहीं रखते फिर। सर यही मैसेज पेरेंट्स को हम कैसे बोल सकते हैं कि व्हाट शुड दे बी थिंकिंग अबाउट? एक ये तो समझ में आ गया कि मार्क्स से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बट उसको अपने डेली लाइफ में बच्चों से जो हम इंटरेक्शन करते हैं, हाउ कैन पेरेंट्स इनकलकेट दोज वैल्यूज़ इन देयर डेली लाइफ्स? हाँ, वो कैसे हम पेरेंट्स बच्चों में तो ला उसके सकते हैं? लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो का इम्पोर्टेंट है बहुत। ओके। कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, हाँ। तो ये अगर हम उनको देते हैं, जैसे कनाडा में है कि 6 महीना थेरी है, 6 महीना प्रैक्टिकल है, हाँ। तो ऐसे बच्चों से जब एक 5th 6th से भी हमने ट्रेनिंग देना चाहिए पूरा कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है या फ़ोन बिल पे करना है तो कैसे करना चाहिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, तो ये अगर हम उनको प्राइमरी से ही देते हैं तो स्किल डेवलप हो सकता है। तो स्किल अगर डेवलपमेंट होगा तो ही वो आगे जा सकते हैं। तो ये पेरेंट्स से भी उनको सिखाना चाहिए कि मार्क्स जो भी आएगा ठीक है, मार्क्स से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। सही बात है। हाँ, एंड ये पेरेंट्स से, रेगुलर एजुकेटर्स को, टीचर्स को भी अपने पेरेंट्स से ये इंटरेक्शन में बार बार वील हैव टू कम्युनिकेट दैट Yes. यू नो डोंट वरी अबाउट द मार्क्स, Yes. फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट। आर द Yes. चाइल्ड एबल टू रीड प्रॉपर्ली? आज जापान में भी आप देखेंगे तो सब छोटे छोटे बच्चों को रूम भी क्लीन करने को, और ये सब जो भी काम है, हाँ। जो घर के काम है, अपने कपड़े प्रेस करना है, ये भी सब बच्चों को सिखाते हैं छोटे आपके बच्चे। हॉस्टल में? हाँ, छोटे बच्चे। Wonderful. हाँ, तो ये भी अगर हम ट्रेनिंग उनको देते हैं बचपन से तो वो भी काम अच्छा आता है। एक क्वेश्चन सर बहुत पॉपुलर होता है हाँ। कि डे बोर्डिंग वर्सेस हॉस्टल, हाँ, व्हाट डू यू थिंक हैज मोर वैल्यू? हॉस्टल मेरे हिसाब से, हॉस्टल जो लाइफ है हाँ। वो अगर बच्चा अच्छी तरह से रहता है वहाँ पे, तो कितने भी चैलेंजेस आने दे आगे लाइफ में तो आराम से फेस कर सकता है वो। हाँ। क्योंकि वहाँ पे सब इंडिपेंडेंट लाइफ होता है, तो वो हिसाब से अगर आगे जाता है तो वो डेरर बनता है लड़का या लड़की जो भी है। हाँ। तो आगे जाके वो किसी भी जो चैलेंजेस आते हैं बड़े, कितने भी आने दो, तो उसे फेस कर सकता है वो आराम से। तो जो आपने विल पावर वाली बात बोली, तो हॉस्टल में चांसेस बेटर होते हैं। यस, The environment is such. Yes. And I think what I hear as I talk to a lot of educators also is that कि वो जो पेरेंट का एक बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट होता है, वो हाँ. हट जाता है उससे। Yes. एंड समटाइम्स आवर पेरेंट्स आर ओनली स्टैंडिंग इन द वे ऑफ आवर चिल्ड्रंस ग्रोथ। Yes. हम उतना उनको हथेली लगा देते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं हाँ, कि वो अपने ज़्यादा आप की- पैम्पर नहीं करते, हाँ, तो वो रफ और टफ बनते हैं। रफ एंड टफ बन जाते हैं। मेक्स सेंस। आई थिंक that makes a lot of sense. हाँ. I think I want to talk a little bit about I mean obviously जैसे आपने भी बोला कि education was out of passion and out of the need कि यार you want to support this community Yeah. and have services here, right? But there is real balance that has to be done कि impact क्या create हो रहा है, but एक financially independent इंस्टीट्यूट भी रन होना चाहिए। इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल। यस, तो उसके लिए जो स्कूल ओनर्स हैं जो सुन रहे हैं आज हमको, व्हाट शुड दे कीप इन माइंड एज अ डिसिप्लिन टू रन अ स्कूल? फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन तो पहले ये होना चाहिए कि आपका इंटेंशन क्या है, सिर्फ पैसा मिलाना है या एजुकेशन देना है, वो भी एक मायने रखता है। तो अगर इंटेंशन आपका अच्छा है और आप अच्छे टीचर्स लाते हो, अच्छी फैसिलिटीज़ देते हो, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरा कहना है कि पहले अंडा या पहले मुर्गी, ऐसे बोलते हैं कि तो इसमें ऐसा ही है कि अगर हम अच्छा एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी अच्छी देते हैं, तो लोग ऑटोमेटिक पीछे पड़ते हैं। तो आज इसमें स्कूल में हमारे वेटिंग क्यों है एडमिशन के लिए? तो इसके लिए ही है कि कुछ तो है अलग। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में फ़र्क कितना है? एक्स्ट्रा का फ़र्क है, वही फ़र्क है यहाँ पे। 90 ऑर्डिनरी क्या रहता है कि 99 डिग्री तक पानी सिर्फ बॉईल होता है, वो सिर्फ उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन 100 डिग्री पे उसकी स्टीम बनती है। तो यू कैन रन द इंजन ऑल्सो, रेलवे इंजन ऑल्सो विद द स्टीम।
तो And that 1% is standing on yes, the 99%. yes, yes. That's the learning so that here. is the difference between ordinary and extraordinary. Interesting. सिर्फ एक्स्ट्रा एक वर्ड का फर्क है, हाँ लेकिन उसमें एक्स्ट्रा में बहुत कुछ छुपा हुआ है. हाँ जी. तो इसलिए जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, हाँ ओनरशिप एटीट्यूड से काम करते हैं सब. हाँ. जो स्टाफ है हमारा, वो भी ओनरशिप एटीट्यूड से काम करता है, क्योंकि हम खुद काम करते हैं. रात को 9 बजने दो, 10 बजने दो, तो हम घड़ी नहीं देखते कभी भी. तो वो अगर हमको देखते हैं तो वो भी काम करते हैं ओनरशिप एटीट्यूड से. हाँ. सो दैट मेक्स द डिफरेंस. Has running multiple business allowed you to bring that discipline to the education vertical of your group as well? यस, 100%. Can you share some examples? हाँ, on that? डिसिप्लिन तो इट्स अ रूट. मैंने कहा कि हाँ. इट्स अ रूट ऑफ एनी सक्सेस. हाँ जी. तो डिसिप्लिन अगर है, हाँ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल एंड योर सक्सेस. हाँ तो जो ब्रिज है, हाँ कोई भी चीज़ आप सुबह से उठ के, बच्चे भी हमको देखते रहते हैं. हाँ तो सुबह से जब उठते हैं हम, तो आपका जो भी रहेगा, योगा है हाँ या आपके शूज़ है, हाँ. आपके ड्रेस यूनिफॉर्म है, आपका हाँ. हेयर स्टाइल है, Sure. सब करेक्ट चाहिए. हाँ. मुझे कैंपस में कोई भी वो ब्रासलेट भी पहनता है तो भी नहीं चलता है. हाँ कान में कुछ डाल के आते हैं स्टूडेंट्स, वो भी नहीं चलता है. हाँ. तो ये छोटी छोटी बातें हैं. Yes. बट यू शुड नॉट कंसिडर लिटिल थिंग्स एज अ लिटिल. हाँ तो जो छोटे बात को छोटी समझता है, तो वो कभी आगे नहीं जाता है. हाँ तो हमेशा आप देखिए कि आप अगर प्लेन चला रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे. हाँ. प्लेन चला रहा है तो उसे क्या बोलेंगे आप, जो Plane. चलाता है प्लेन, Pilot. पायलट बोलते हैं. हाँ. बस चलाता है उसे क्या बोलते हैं, Bus driver. बस ड्राइवर. ट्रक चलाता है उसे क्या बोलते हैं, Truck driver. कार चलाता है उसे क्या बोलते हैं, Car Car owner. driver. Car driver. Yeah. कार ड्राइवर. Yeah. और जो स्कूटी चला रहा है उसे क्या बोलते हैं, Good question. ओनर. Owner. हाँ. ओनर. तो Interesting. प्लेन चलाता है उसे आप पायलट या ड्राइवर बोलते हैं, हाँ और जो स्कूटी चला रहा है उसे ओनर बोलते हैं. हाँ तो छोटी बात को कभी भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. हाँ साइकिल चलाता है उसे वो भी ओनर ही बोलेंगे आप. हाँ. तो इसलिए हर छोटी बात को हाँ. बड़ी होने से पहले उसे डिसिप्लिन से सही किया जा सकता है. Very interesting. अगर आप शूज़ आपके नहीं देखेंगे, पॉलिश्ड नहीं है शूज़, आपके कुछ भी रेट के रहने दो शूज़, क्वालिटी कुछ भी रहने दो, लेकिन उसे साफ रख सकते हैं, पॉलिश रख सकते हैं. ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एलवी के शूज़ लेने चाहिए. अगर सादा भी शूज़ है तो भी उसे अच्छा रख सकते हैं. हेयर स्टाइल हमारे अच्छी रख सकते हैं. काला है या गोरा है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. सही बात है. तो वो भगवान ने बनाया है. हाँ लेकिन हमारे हाथ में है कि डिसिप्लिन से हम अच्छे रह सकते हैं, बिल्कुल. हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बना सकते हैं, हाँ जी. हमारे थॉट्स अच्छे. डिसिप्लिन में अगर हम रहते हैं हाँ. तो थॉट्स अच्छे आते हैं. हाँ थॉट्स से हमारी एक्शन बनती है, हाँ. एक्शन से हमारा एटीट्यूड बनता है, Interesting. Yeah. एटीट्यूड से हमारी हैबिट बनती है, हैबिट से हमारी डेस्टिनी बनती है. Absolutely. And those small things compound to large results. यस, तो डेस्टिनी तक जाता है. हाँ एक छोटी डिसिप्लिन से हाँ. हमारे थॉट्स, जो जनरल एक कॉमन ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हाँ 7,000 to 8,000 थॉट्स डेली आते हैं. 8,000 थॉट्स आते हैं. कैसे एंड उनको आउट ऑफ prioritize दैट करना? 80% थॉट्स आर नेगेटिव. हाँ तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाना है. हाँ तो ये पॉजिटिव हम बना सकते हैं कि डे ड्रीम देखना चाहिए, दिन में ड्रीम देखना चाहिए. हाँ हाँ रात को तो आँख बंद होने के बाद जो भगवान दिखाते हैं वो देखते हैं हम, हाँ. लेकिन दिन में जो देखते हैं वो हमारे हाथ में है. ड्रीमिंग विद योर आईज ओपन जो Yes. बोलते हैं. हाँ. तो अमेजिंग. ओपन आईज से जो ड्रीम देखते हैं उससे हमें थॉट्स अच्छे आते हैं. बिल्कुल. तो थॉट्स अच्छे आने से हमारा डेस्टिनी भगवान किसी की डेस्टिनी नहीं लिखता है. डेस्टिनी हमारे हाथ में है. Absolutely. हमारा एटीट्यूड कैसे है, हमारा बिहेवियर कैसा है, बड़ों के साथ बिहेवियर कैसा है, हम कितने हम्बल है, तो इसकी वजह से सब होता है. Sir, काफ़ी मैं आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दिस होल माइंडसेट विद विच यू अप्रोच एवरीथिंग. हाँ. एंड दैट माइंडसेट सीम्स टू बी दैट सुपर चिप इन द ओवरऑल ऑपरेशन, अगर Yes. ऐसे टेक्नोलॉजी टर्म्स में बात करें. हाँ. राइट. टेक्नोलॉजी टर्म्स में मैंने एक सक्सेस पे एक डेफिनेशन भी बनाई है, हाँ. बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स. हाँ तो यस उसके ऊपर मैंने कार के ऊपर सक्सेस के लिए प्लीज डू एक शेयर. तो डेफिनेशन जो बनाई है कि जो स्टूडेंट्स भी देखते होंगे ये पॉडकास्ट, तो उनको भी काम आएगी, हाँ. पेरेंट्स को भी काम आएगी. यस. तो कार ऑफ सक्सेस हाँ. रन्स ऑन 4 wheels ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ओके विद स्टेपनी ऑफ क्लीनलीनेस, ओके एक्सेलरेटर ऑफ डिसीजन पावर, ओके ब्रेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ओके clutch of discipline. If you want to win the race of life, you have to change the gear at right time with your imagination power and with steering of vision, action and passion.
and horn of good communication with feedback and follow-up. You and engine of teamwork, family, friends, and teamwork. Wow. And you can charge the battery of this vehicle with your smile. Oh my God, I'm And- getting goosebumps listening to this. And speedometer of this vehicle shows miles per hour, not miles per hour. And you should have good suspension to absorb the shocks of the life with never give up attitude. Okay. Absorb the shocks of the life and challenges of the life and pressures of the life. And if you want to reach the destination, you should have good company with fuel of self-confidence. And you have to put the board of L, that means learner, throughout your life. That what to learn, what to relearn, and what to unlearn. Unlearn. And if you want to start this vehicle, you should have the key of humanity, humbleness, and attitude of gratitude. Wow. That's amazing, sir. And please. GPS of this car shows growth, progress, and success. Oh God. And front glass is bigger to focus on your journey and your destination. And rear view mirror is smaller to forget the past. And you should keep doing balancing of 4 wheels frequently. And you should keep this vehicle fit to get more and more mileage. So this Wow. is the definition of success. I have to absorb that in a minute, and it seems like I got a life lesson. Yes, this is the life. i- This is the life lesson. Through and a this is car, the and your extract. passion is coming out. This is the extract of my 60 years experience. Wow. Thank you so much for sharing. I feel like I'm short of words listening to this analogy, and so beautifully you have laid it out. Yeah. And I think आपने पूरा सारांश मुझे निचोड़ में एक बार में दे Yes. दिया. Thank you so much इसमें for सब sharing आया है. this. इसमें एक भी अगर हम मिस करते हैं तो भी हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते. How did you come up with this? बिकॉज कार का जो शौक है पहले से, हाँ. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स. Tell us about it a little bit. कार तो पहले से शौक है, हमारे ब्लड में है बोलते. हाँ, अच्छा. हमारे ग्रैंडफादर से है. हाँ हाँ तो ग्रैंडफादर के टाइम थोड़ा इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे. हाँ जी. तो वो फिएट एम्बेसडर ऐसे कार यूज करते थे. हाँ, हाँ. लेकिन कुछ भी होता था कार को हाँ. तो दादाजी हमारे खुद रिपेयर करते थे. अच्छा. इतना पैशनेट थे. Do you have that bug too? या To open up the vehicle? नहीं, and अभी all तो that? टाइम नहीं मिलता है. हाँ, हाँ. लेकिन कर सकता हूँ अगर मन में लगे. नॉलेज है. Knowledge है पूरा. इंटरेस्ट भी है. नॉलेज पूरा है हाँ. कोई भी चीज का. अच्छा. तो आज इतना पैशन है कि 130 कार्स आर देयर ओह वाह. एंड 40 बाइक्स आर देयर. हाँ हाँ. तो हर कार का इंजन भी पॉलिश होता है डेली. वाह. ये पैशन है. बाइक ओवर कार. हाँ, दोनों में से आपका प्रेफरेंस क्या रहता है? दोनों भी है, सब है. जो भी मशीन है हाँ. वो बहुत पैशनेट है पहले से. हाँ, हाँ, तो इसके लिए फिर हेलीकॉप्टर में भी पैशनेट है हाँ और ये प्लेन भी है. हाँ हाँ हाँ. तो ये सब जो मशीन्स जो भी है वो पहले से बचपन से है. मैंने कहा जैसे 6 साल में भी खेलते थे तो हेलीकॉप्टर और प्लेन से ही खेलते थे. हाँ. तो वहाँ से ये ब्लड में आया हुआ है हाँ, हाँ. और उससे ये एनोलॉजी बना है. वंडरफुल सर. आई मीन आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये आपने बनाने में आपको टाइम कितना लगा होगा. हाँ, एक एक बनते गए ऐसे. हाँ. ये जुड़ पहले कड़ी से कड़ी हाँ, जुड़ता गया पहले मुझे basically. इतना ही मिला था सिर्फ ये हाँ. फोर व्हील्स wheels वाला. उतना मिला था. उसके ऊपर से फिर बनाया है. Wow. That's beautifully and the way you recited it, I can tell the passion इसमें of जो vehicles फिटनेस का coming मैंने कहा, यू शुड हाँ. कीप दिस व्हीकल फिट. out. हाँ. इसका मतलब है कि हमको फिट रहना चाहिए हमेशा. अगर फिजिकली आप फिट है, Physically and mentally both actually. मेंटली बाद में होता है. आदमी हाँ. फिजिकली पहले होना चाहिए. फिजिकली आप अगर फिट है देन मेंटली यू विल बिकम फिट. हाँ. क्योंकि बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी Yeah. एंड टच योर फीट डेली. हाँ. अगर हम हमारे पाँव पढ़ सकते हैं हाँ. तो ही हम दूसरे के पाँव पढ़ सकते हैं. सही बात है. तो ये उसका इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में. तो फिटनेस का बहुत बड़ा महत्व है. हाँ. अगर फिट रहता है आदमी एनर्जेटिक. आज मैं 60 इयर्स का हूँ हाँ. लेकिन आज भी मैं 16-17 घंटे काम कर सकता हूँ आराम से. Wow. तो ये जो That's an है inspiration in itself to keep. I mean वो बोलते हैं ना सर कि आपका बॉडी ही आपका 100% साथ देना है. यस, इफ यू विल गिव टाइम फॉर फिटनेस हाँ. देन यू डोंट हैव टू गिव टाइम फॉर इलनेस. ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल. तो फिटनेस का बहुत बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में. I love the punchlines that you keep, throwing into our conversation. I think those are very good ways of
रिमेम्बरिंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड टेक अवेज बहुत ईजी हो Yes, जाते और ये हैं बच्चों को भी इजी रहता है बिल्कुल समझने के लिए. आई मीन आई कैन ऑलरेडी सी लाइक a guidebook coming out of this conversation. But sir, you know, I've had the privilege to know you for almost 9 years with, you know, interactions although limited, but I've seen the ecosystem around you. Yeah. And मुझे एक चीज़ बहुत इंस्पायर करती है कि the team that you have built around you, Yeah. वो टीम ऐसी है कि सर they are prepared to move mountains for you. Yes. तो how does one build a team like that? कैसे हम हमारे इकोसिस्टम में ऐसी टीम बना सकते हैं सर? टीम बनाने के लिए पहले आपके पास लीडरशिप क्वालिटी चाहिए कि जो भी क्रेडिट मिलता है, कुछ भी सक्सेस मिलता है तो क्रेडिट उनको दे रहा है. यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम. और कुछ फेल्यूर आता है तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई शुड टेक. तो ये दो अगर चीज़ रहेगी हमारे में तो टीम ऑटोमेटिक बनती है. अगर लीडर ही खुद बोलता है कि मेरी वजह से हुआ है तो कुछ नहीं होता है. तो हमेशा हमको सीखते रहना चाहिए. लीडर को भी सीखते रहना चाहिए, टीचर्स को भी सीखते रहना चाहिए. एवरीबडी शुड बी लर्नर थ्रू आउट हिज और हर लाइफ. ऐसे मैं मानता हूँ क्योंकि लर्निंग लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू नॉलेज, नॉलेज एक्सपांड्स योर विजडम, विजडम एक्सपांड्स योर किंगडम एंड किंगडम क्रिएट्स योर वैल्यू. वाह. तो दिस जर्नी इज़ फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन इज़ वैल्यू क्रिएशन. तो लर्निंग से लेके वैल्यू क्रिएशन तक हम काम करते हैं. हमको पैसा कमाना है, कब तक कमाना है? जब तक हमारी बेसिक नीड्स है. यस. उसके बाद जो करना है काम हमें वो वैल्यू क्रिएशन के लिए है. यस. आज मुझे ज़रूर नहीं थी 12 इंडस्ट्री चला के इंस्टीट्यूट करने की. यस. क्यों किया मैंने? हाँ. क्योंकि मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है यस. जो इंडस्ट्री में नहीं मिलता है. यहाँ पे आज भी जो एल्यूमिनाई मिलते हैं मुझे कहीं पे भी एयरपोर्ट पे या आके पहुँच होते हैं हाँ. और कहते हैं कि आपकी वजह से हमारा फ्यूचर अच्छा हुआ है. Absolutely. तो ये सेटिस्फेक्शन और किस में मिलता है? सही बात है सर. and it seems like, you know, I mean, obviously you can choose where you want to spend your time and you're spending majority of your Yes. time in education. Yeah. I think that I can think already only tell few me what your people- future plans may be. I think only few chairmen spend their time in campus. Absolutely, and especially where there are very few with such diverse Yeah, yes. you know, interest as well. Yeah. And that is why it was even more inspiring to understand कि you know, already इतना सब करके एजुकेशन में we have come in and we are spending so much time in it. और आज हमको इतना इंटरेस्ट आ रहा है इसमें कि हमको अभी पुणे अभी हमने स्कूल किया है Okay. तो वहाँ पे भी रिस्पांस अच्छा है. Yes. तो ऐसे हर सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में एक स्कूल करके You want to go pan India? यस पैन इंडिया और इसको नंबर 1 ब्रांड बनाना है हमें SGI को. Wonderful. ये मेरा विजन है अभी. हाँ जी. जो स्टार्ट में नहीं था. ये पहले विजन था कि कोल्हापुर का हाँ. कोल्हापुर का स्कूल नंबर 1 बनाना है. तो अब कोल्हापुर के स्टार को हाँ, पैन इंडिया ले जाना yes. है. तो ये विजन है. ओके. तो विजन कंप्लीट होगा क्योंकि टीम इज कैपेबल. मोहंती मैम है, विनायक भोसले है, टीचिंग ऑल टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है. हाँ जी. जो भी ईच एंड एवरी मेंबर इज कैपेबल. तो इससे हो सकता है. Sir, you've led businesses and you're leading an education institute Yeah. also. Does your style of leadership change when you are like dealing with your team on your business, like दूसरे businesses versus education? दोनों में फ़र्क है style of leadership में? फ़र्क है यहाँ पे. वहाँ पे हम किसको भी फायर कर सकते हैं इंडस्ट्री में. तो यहाँ ये नहीं कर सकते. अच्छा. तो अगर मन में भी अगर आता है तो भी नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हायरार्की जो हमने मेंटेन की हुई है यहाँ पे कि कुछ भी रहेगा इधर प्रॉब्लम. मैं आज केजी के बच्चों से लेके PhD तक के बच्चों का खुद मैं ये लेता हूँ उनसे जाके कि कुछ फीडबैक्स लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या आपको. लेकिन उसमें जो भी इम्प्लीमेंट करना है वो विनायक को है या मोहंती मैम को है या VC सर को है. इनको सबको बोल के उनको पूरा बता के उनको साथ में लेके चलते हैं. So it's very interesting. You're saying stay attached to the ground Yes. by getting feedback. Yes. But channel your thoughts and ideas Yes. through the right और उसका system. फॉलोअप लेता हूँ फिर से. हाँ. Okay. 2 दिन से और फॉलोअप लेता हूँ कि ये आज एक हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था गर्म तो वहाँ पे आया कि नहीं, वो फॉलोअप भी लेता हूँ मैं वापस. तो ये फॉलोअप लेते हैं तो सब बराबर सब काम करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं But और टाइम पे काम करते हैं. बड़ा बैलेंस यू मस्ट हैव टू मेंटेन सर फ्रॉम अ कहाँ माइक्रो मैनेज करना और कहाँ मैक्रो मैनेज Yes. करना, लाइक नहीं Yes. करना. वो वही कैसे decide लीडर का करते काम हैं? वही है. मैक्रो एंड माइक्रो में कैसे बराबर करना है और सबको लेके चलना है. क्योंकि
all are educated people here. So you have to maintain their ego also. So that is तो टीम को साथ में लेके चलना हाँ is टीम को very साथ में लेके important. चलना है, लेकिन काम भी होना चाहिए अपना. Accountability. ऐसा नहीं It है. has to be with accountability. Yes, It is not a accountability. free ride for anyone. Yes, yes. Absolutely. तो एक दो चांस देके देखते हैं, अगर उसने नहीं किया काम तो फिर उसे फायर करते हैं. Okay. हाँ तो वो भी किया हुआ है सिस्टम. And so there is a right structure in place for that. Yes. Sir, I see a lot of आपने जो शेयर भी किया that you're obviously learning a lot and you're a keen learner, I can tell Yes. that. What is your style of learning? मतलब आप अपने आप को इतने obviously you have so much time that you have to spend everywhere. आप ये learning की journey continue कैसे रखते हैं अपने लिए? वो मैं बुक्स पढ़ता हूँ. Okay. In my Kindles there are 300 to 400 books. Oh wow. हाँ तो वो बुक्स पढ़ते हैं बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं. हाँ. फेलियर्स के भी पढ़ता हूँ. हाँ. फेलियर्स की भी ज़्यादा पढ़ने चाहिए बुक्स. बिल्कुल. क्योंकि उससे आइडिया आती है कि उससे फेल सीखने को ज़्यादा मिलता है. क्या ज़्यादा, गलती नहीं करना क्या नहीं करना वो सीखने को मिलता है. बिल्कुल. क्योंकि मिस्टेक्स एक ऐसी चीज़ है, मिस्टेक एक बार करो तो अच्छी है, रिपीट नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही बात. मैंने भी अपने ऑफिस में भी लिखा हुआ है, मेक न्यू मिस्टेक्स. यस. अगर आप नई मिस्टेक कर रहे हो तो यू आर डेवलपिंग. हाँ. अगर आप रिपीट करते हो तो यू आर स्टूपिड. ऐसे मैं मानता हूँ. There's something that I read also that while you might continue to face problems in whatever you do, Yes. but the quality of your problems should start improving. Yes. If the quality of your problems is improving, Yeah. that means your growth is coming your way. यस. So और that प्रॉब्लम भी भगवान किसको देते हैं? जिसकी कैपेसिटी है उसको देते हैं. that's a very glass half full way of looking at हाँ it. तो ये प्रॉब्लम हम वही देखते हैं हाँ. कि जिस दिन प्रॉब्लम नहीं रहेगा उस दिन हमको लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है. प्रॉब्लम आने चाहिए. तो अभी जैसे हमारा प्लेन है कि एयरपोर्ट पे रखने के लिए नहीं है वो जब जाता है 40,000 फीट पे टर्बुलेंस में जाता है, हाँ. वहाँ पे उसकी टेस्ट है. टेस्ट होती है. हाँ तो मैं ये मानता हूँ हमेशा कि ईच टेस्ट ऑफ योर लाइफ मेक्स यू बिटर और बेटर. Okay. ईच चैलेंज ऑफ योर लाइफ ब्रेक्स यू और मेक्स यू. Okay. इट्स अप टू यू टू बिकम विक्टिम और विक्टर. Victor. Absolutely. तो ये है. और सर इंडिया का एजुकेशन लैंडस्केप इतना चेंज हो रहा है, हाँ. राइट? इफ इट वाज अप टू यू टू रीडिजाइन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हाँ. एक चीज आप क्या चेंज करना चाहेंगे उसमें? मैं यही करना चाहूँगा कि 6 महीने theory 6 महीने प्रैक्टिकल. ओके. ऐसा ही चाहिए. इवन इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब Yes, सारी yes. ग्रेड्स में. सब ग्रेड्स में. ओके. ये मेरा सबसे पहले रहेगा. तो ये जो कनाडा में आप देखेंगे मिनिस्टर भी जो रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर रहेगा, वो मिनिमम BE इलेक्ट्रिक रहेगा. हाँ. सो एजुकेटेड ब्यूरोक्रेसी. हेल्थ मिनिस्टर रहेगा तो मिनिमम MBBS रहेगा. हाँ. तो ये क्राइटेरिया सब जगह आना चाहिए, ऐसे मुझे मानता हूँ. एब्सोल्युटली. और आप उस फील्ड को अगर आप मॉनिटर कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो, Yes. तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी सम सॉर्ट ऑफ एन basic knowledge तो चाहिए. बेसिक नॉलेज तो उसका बिल्कुल होना हाँ. चाहिए. बिल्कुल सही है सर. आई थिंक अगर मैं बात करूं कि इफ देयर वाज अ चैलेंज दैट यू कैन थिंक ऑफ, जैसे एडटेक बहुत चल रहा है, राइट? तो इफ देयर वाज अ चैलेंज यू विश दैट द इंडस्ट्री शुड फोकस ऑन और द न्यू एंटरप्रेन्योर शुड फोकस ऑन इन सॉल्विंग फॉर एजुकेशन, what would be that challenge you would advise startup founders or entrepreneurs to work on to improve education in India? इम्प्रूव उसके लिए थोड़े रूल्स जो है गवर्नमेंट के वो भी थोड़े रिलैक्स होने चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ. क्योंकि जो रूल्स आज है वो बहुत थोड़ा पहले के रूल्स है. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से रूल्स अगर आएंगे, थोड़ा लिबरल करेंगे इसको, तो अच्छे लोग आएंगे. आज जैसे टाटा भी आज हमको दिखाई नहीं देते एजुकेशन, तो वो भी आने चाहिए. टाटा जैसे लोग अगर आएंगे तो क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी. एजुकेशन फील्ड विल बी बोल तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. इंडियन एजुकेशन. तो ऐसे लोग आने चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ. हाँ तो उसके लिए हमको प्रमोट करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए. गवर्नमेंट ने जो सेक्टर को प्रायोरिटी देते हैं उसमें सब लोग आने की कोशिश करते हैं. Entrance obviously then it attracts Yes. people and good people to come into the Yes, sector. Like yes. you said, Tatas would be an amazing thing to Yeah. have. Right? Sir, my favorite part is to time travel with my guest. हाँ. Right? तो अगर हम imagine करें that हम 2109 में है, which हाँ. will be 100 years of SGIS, हाँ. right? And हम आप बैठे हैं, what would be, how would you want द स्टीवर्ड्स ऑफ योर लेगेसी, जो उस समय आपकी लेगेसी को संभाल रहे होंगे, हाँ. वो लोग आपकी इस वर्क को कैसे याद करें? अगर हम 2109 ईयर में बैठे होंगे, अगर आप और मैं बैठे हैं, हाँ. हम 2109 में फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं, हाँ. व्हाट वुड यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज योर लेगेसी फॉर?
लेगेसी वही सबने बोलना चाहिए कि जो आज हमने यूनिवर्सिटी बनाई है या स्कूल बनाए हैं, ऐसे सबसे ज़्यादा और स्कूल बढ़ा के ऑल इंडिया बना के वो नंबर 1 ब्रांड वो होना चाहिए। और सबने याद करना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन कि संजय भाई ने ये काम अच्छा किया है अपने लाइफ में, कि जो कितने जनरेशन्स आगे याद करेंगे लोग कि हमको अच्छा एजुकेशन मिला। कि आज फॉरेन में जाके भी ऐसा नहीं मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बाकी जो भी आज बच्चे जो भी मांगते हैं हम देते हैं। यू नेम इट वी हैव इट। आज कोई भी आप ले लो फैसिलिटी, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी, तो वो जो बच्चे मांगते हैं वो हम देते हैं, क्योंकि हम एक फैमिली समझते हैं सबको। जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सबको एक फैमिली समझ के काम करते हैं। तो इसकी वजह से आज एक बॉन्डिंग उसमें अच्छा तैयार हुआ है पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में और टीचर्स में, एक और कम्युनिटी बिल्ड हुई है। कम्युनिटी बिल्ड हो गई है। यस यस। तो इसकी वजह से एक एम्बियंस अच्छा हुआ है। तो ये आगे ऐसे ही चलता रहे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। क्या आप सोचते हैं सर इस बारे में कि मतलब डज दैट चेंज द वे यू डू थिंग्स एंड थिंक अबाउट थिंग्स आज, कि 100 साल बाद उसको कैसे याद किया जाएगा, उस क्या वो आपके ध्यान में रहता है व्हेन यू टेक एक्शंस टुडे? हाँ, हमेशा रहता है वो, क्योंकि विजन आप जब देखते हो, विजन का मतलब क्या है कि जो आके तो भगवान ने सबको दी है, लेकिन जो दूसरे को नहीं दिखता है वो विजनरी को दिखता है। सही बात है, इतना ही फर्क है, बिल्कुल सही। और कुछ नहीं। तो वो विजन से हम काम कर रहे हैं कि 100 नहीं, आप तो 100 ईयर्स की बोल रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ 1000 ईयर्स। जब तक अर्थ है तब तक धरती जब तक है तब तक इसका नाम होना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। क्या ये आपके कम्युनिकेशन में भी रहता है आपकी टीम को कि यार व्हाट वी आर डूइंग हैज टू बी जनरेशनल फॉरएवर? यस यस, हमेशा रहता है टीम को। और ये जो हमारे मिशन है ग्रुप का, उसमें भी है जो सैनिक ने जो आगे किया है, जो लड़का आज एयरलाइन देख रहा है एट द एज ऑफ 35 इज रनिंग एयरलाइन सक्सेसफुली। तो जो कोविड में जो भी एयरलाइन शुरू हुए थे वर्ल्ड में, वो सब बंद हो गए। एक ही स्टार एयर ही चल रहा है जो कोविड में शुरू हुई थी वो, एंड इट इज़ नाउ इंडियाज नंबर 1 रीजनल एयरलाइन। एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट नंबर 1 रीजनल एयरलाइन इन द वर्ल्ड इन कमिंग 5 years। तो 50 और प्लेन का भी उसमें प्लान है। वंडरफुल। तो वी विल कनेक्ट ऑल अनकनेक्टेड सिटीज ऑफ इंडिया टू मेट्रोज। सो इट्स अगेन अ मिशन ओरिएंटेड अप्रोच कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने हर इंडस्ट्री में एक्सपैंड किया है। दैट्स एंड दैट्स बोलते हैं ना आजकल कि ओन योर नीश। आजकल बोलते हैं कि आपका स्पेस को ओन करो, एंड इट सीम्स लाइक योर ऑपरेशन इज एक्सपैंडिंग। कि हमारा कभी भी जो पहले से एक विजन रहा है कि जो मार्केट में शॉर्टेज किस चीज़ का है और पेन क्या है लोगों को, वो उस पे हम काम करते हैं। बिल्कुल। हाँ, दैट्स द ट्रेंड, वो एक ट्रेंड मुझे दिख रहा है। हाँ, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे ओला उबर आपने देखा होगा कि शुरू कैसे हुआ था। उसकी एनिवर्सरी थी वो उबर के ओनर की, तो एनिवर्सरी भी नहीं पहुंच पाया, वो टैक्सी नहीं मिली उसे। वहाँ से उसने उसको आइडिया आई। तो आइडिया तो सबको आती है, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। सही बात है। तो इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए, आइडिया को एक्सचेंज कीजिए। इफ़ यू एक्सचेंज 500 रुपीज़ नोट, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आपका 500 का नोट मेरे पास आएगा, मेरा 500 का आपके पास जाएगा, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अगेन यू विल हैव 500 रुपीज़, आई विल हैव 500 रुपीज़। बट इफ़ आई विल एक्सचेंज 2 ideas with you and you will exchange 2 ideas with me, I will have 4 ideas, you will have 4 ideas. Wow. So that is the power of ideas, exchange of ideas. Basically sharing ideas doesn't lose value is what you're saying. So that's very powerful to say. तो ये है, आइडिया आती भी है सबके पास है, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। आपने सुना होगा वॉल्ट डिज्नी की कहानी कि वो बैंकरप्ट बन गए थे। वो न्यूयॉर्क के फुटपाथ पे बैठ के ब्रेड और चाय ले रहे थे। तो वहाँ से एक चूहा आया गटर में से, और चूहे ने ब्रेड निकाल के ले लिया उनका। तो ब्रेड लेने के बाद उन्होंने कहा वॉल्ट डिज्नी ने, अभी मेरा तो सब लूट गया है, एक ब्रेड बचा था और चाय बची थी, ब्रेड तो तूने ले लिया है, अभी चाय भी ले ले। तो उसको चाय का भी वो प्याला भी देते हैं उसको। तो देने के बाद वो चूहे को इतना मज़ा आता है, वो कूद कूद के ऐसे ऊपर से जाके वो ब्रेड डुबा के खाता है। तो वो आइडिया देख के उनको एक आइडिया आती है कि इसके ऊपर अगर हम कार्टून फिल्म बनाते हैं तो कैसे होगा, बच्चों को कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे चूहा डांस कर रहा है। तो फिर उन्होंने मिकी माउस फिल्म वो बनाई, और वो इतना फेमस हो गया वर्ल्ड वाइड कि ही बिकेम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। तो ये फुटपाथ से लेके
ये यहाँ तक की जो जर्नी है, ये आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन है। Absolutely. तो Absolutely. इसके लिए ये ज़रूरी है बहुत इम्प्लीमेंट करना। And sir, I mean, obviously, so much we are learning today. You know, as we are getting closer to our episode, I would really love for you to share a message or a takeaway for जो हमारे major listeners हैं. That will be school owners, principals, teachers, and parents. From your journey in education and life at large, what will be your message for these four stakeholders? Yeah. So my message is that academic life and practical life is totally different. So we should teach them, students, that how to handle these issues of practical life. So we should teach them how to face the challenges, how to face the pressures of the life. तो आज के जो issues है, तो उस पर अगर हम फोकस करते हैं, तो ये बहुत आगे जाएगा। इसमें से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो डेवलपमेंट कर सकती है। तो इसलिए अगर एबल लीडर्स उनको बनाना है, तो उनको वीआईपी बनाने से अच्छा है उनको डीआईपी बनाना चाहिए। ओके। हाँ, वीआईपी तो यूएस में 600 वीआईपीज है। इन जापान देयर आर ओनली 150 वीआईपीज। ओके। इन चाइना देयर आर 400 to 500 वीआईपीज। बट इन इंडिया देयर आर 6 लाख वीआईपीज। तो वीआईपी बनना, जो उसको कम काम करना है, वो वीआईपी बनता है। हाँ जी। और हमको बनाना है डीआईपी। ओके। डीआईपी का मतलब है डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट पर्सन। वाह। तो ये हमको बनाना है बच्चों को। तो ये हिसाब से अगर हम बनाते जाएंगे उनको, तो एक डिसिप्लिन जनरेशन तैयार होगी और उसमें से नेशन बिल्डिंग होगा। And what they say, no, right, that everyone is talking about AI. तो artificial intelligence important है, but उसके लिए naturally stupidity नहीं हो जाए। नेचुरल स्टुपिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम्स है, साइड इफेक्ट्स उनको बताना चाहिए बच्चों को। प्लांट्स जो प्लांटिंग करते हैं हम, उसका इम्पोर्टेंस बताना चाहिए। आज हमने करीब हमारे ग्रुप की तरफ से 2 लाख पेड़ लगाए हैं। 2 लाख पेड़ लगा के, यस, कोल्हापुर टू सांगली तक 2 लाख पेड़ लगा के उनको बराबर उनको ग्रोथ की है उनकी। हमारे पानी जो हम देते हैं हमारे टैंकर से, तो ये ऐसे उनको सब सिखाना चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, सस्टेनेबिलिटी पे सब आके बोलते हैं, एसी में आके बैठ के बोलते हैं, लेकिन एसी में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगा, बढ़ेगा उल्टा। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये नेचुरल स्टुपिडिटी है। यस। आपको ग्लोबल वार्मिंग पे बोलना है तो ओपन ग्राउंड पे बैठ के 12 बजे दोपहर में बोलना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। Then you're really connected to it. Yes. Absolutely. तो प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच बोलते हैं, वैसे अगर हम खुद करते हैं, खुद एक्शन लेते हैं, तो सस्टेन हो सकता है। बिल्कुल। Well, thank you so much, Sanjay sir. Before we close, you know, this is our anniversary episode. Actually, you know, as you heard that it's our 12th episode, right? So we want to start a new tradition as part of this anniversary special episode, where we want you to ask a question, which will be carry forward to the next guest or our next episode of Inspired. So anything that you want to ask an educator who's going to be on the show next, they will respond to your question in the next episode. So please ask us something that you would like. First of all, I would like to congratulate you for the first anniversary. Thank you, sir. And my question is that there are many schools, international schools, they are interested to come to India. Yes, of course. Yeah. So what should be their roadmap to come to India? Okay. And will they be successful? How they will be successful? Okay. So that is the most important part. I think that's a thank you so much for that question. I think that seems to be a lot of buzz around it. Let's call it that. And we'll certainly put this out to our next guest on the show. Yes. With that said, I want to thank you again for your time, for spending this evening with us, and being on Inspired. I think the audience would have certainly left inspired, not just education, but really from a life perspective, and the determination and the resilience that you have showcased in your life, and what you have shared with us today, it's really a masterclass. So thank you so much. और एक बच्चों को मैं एक्सट्रैक्ट बोलना चाहूँगा मेरे लाइफ का, कि जो 30 साल बिजनेस में लाइफ मैंने देखा है, और 60 साल जो पूरा देखा है लाइफ, और जो अच्छे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जो
मैं किताबें पढ़ता हाँ हूँ जी। उसमें से मैंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला है ओके कि सक्सेसफुल और पीसफुल लाइफ किसका बनता है। ओके तो उसमें लिए ये है कि जो हंसते हंसते कबूल करे अपनी भूल, हाँ हिंदी में है। हाँ, please। हाँ, तो जो हंसते हंसते कबूल करे अपनी भूल, जो अपने माथे पे लगा ले अपने माता पिता के चरणों की धूल, जो हर स्थिति में रखे अपना दिमाग कूल, जो हर प्रतिकूल स्थिति को बना दे अनुकूल, जिसका दृष्टिकोण हो वंडरफुल, जिसका चेहरा हो चीयरफुल, जिसकी वाणी हो जॉयफुल, जिसका दिल हो ब्यूटीफुल, जो हर एक के लिए हो यूज़फुल, जिसका व्यवहार हो ट्रूथफुल और फेथफुल, जिसकी बॉडी हो पावरफुल, उसका ही लाइफ बनता है पीसफुल, मीनिंगफुल और सक्सेसफुल। Wow, that's amazing. I think out of all the things, I have also discovered your talent with words today. Yeah, because purity of life, purity of water is measured by pH. That means potential of hydrogen. But purity of life is measured by pH. That means peace and happiness. आप कितना भी पैसा मिला लो, आपको अगर नींद नहीं आती है रात को, आपको दवाई लेनी पड़ती है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात है। तो पीस एंड हैप्पीनेस जिसके पास है, उसके पास पैसा कम भी रहेगा तो ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। Absolutely. तो ये मैं हमेशा मानता हूँ। And I think what I'm also taking आज मैं 12 इंडस्ट्री चला के और ये यूनिवर्सिटी चला के 3 मिनट में सोता हूँ रात को। Wonderful, and I think that's again something to be learning from, and what I'm learning is that you have to really know your why, and be true to it कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, and it's not always just chasing money. It's the fulfillment that comes from things beyond money. यस, नहीं पैसा तो जरूरी है, पैसे के सिवाय कुछ नहीं होता है। हाँ तो पैसा भी जरूरी है, जी लेकिन हाँ। उसके साथ में पीस एंड हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। यस उसके लिए फिजिकली फिट होना जरूरी है। यस फिजिकली फिट होने के बाद मेंटली फिट होता है, बिल्कुल मेंटली फिट होता है तो फाइनेंशियली फिट होता है। यस तो ये सब एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। Great. Well, thank you so much, sir, Yeah. again. And थैंक यू फॉर really appreciate your योर time. कोऑपरेशन ऑल्सो। Thank you. What an insightful conversation. Sanjay Ji's journey proves that education is not just about degrees. It's about leadership, vision, and impact. One of my biggest takeaways today is how great education shapes not just students, but society at large. As we celebrate 1 year of Inspired, I want to thank all of you, our listeners, guests, and supporters, for being part of this journey. If this episode inspired you, share it, comment, and tell us if you had the power to change one thing in education in India, what would it be? Subscribe to Inspired for more conversation that can spark a change in your environment. Until next time, keep learning and stay inspired. This is your host Ankur Gupta signing out. I'll see you in my next episode.